In this lecture, we will discuss the problem based on analytic function. Now, before discussing the problems, here we solve one property. So the property basically we use directly. So to prove that जो partial differentiation का part है del square upon del x square plus del square upon del y square is equal to 4 del square upon del z or del z bar. So this is our property, we can say that. टोटल डिफरेंशिएशन में हमने सॉल्व किए प्रॉब्लम्स इस तरीके की मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में, बट हियर वी यूज दिस डायरेक्टली नाउ. So we assume that let z is equal to x plus iota y. So for proving this property, so this is our equation 1, or and its conjugate z bar is equal to x minus iota y. Now adding 1 and 2, 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो दिस गिव्स अस z प्लस z बार इज इक्वल टू 2x. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 1/2 z प्लस z बार. तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3. नाउ एक बार ऐड किया, अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सब्ट्रैक्टिंग 1 माइनस 2. तो 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा z माइनस z बार इज इक्वल टू. तो 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा प्लस का आयोटा y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा y. So what is the value of y? So y value will be 1/2i z minus z bar. So this is the equation number 4. So this is the equation number 4. Now from 3 or 4. अब 3 से when we differentiate 3 with respect to z, partially with respect to z, so we write down differentiate 3 partially with respect to z. अब दो वेरिएबल है, एक z और z बार, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग पार्शियल डिफरेंशिएट. तो del x upon del z, this gives us 1/2 z, और यहीं पे मैं मेंशन कर दूं z बार. तो del x upon del z बार इज इक्वल टू 1/2. अब डिफरेंशिएट 4 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू z एंड z बार. तो ये क्या हो जाएगा del y अपॉन del z. y को z पर रेस्पेक्ट करेंगे तो 1/2i, और del y अपॉन del z बार इज इक्वल टू -1/2i. तो 1/2i और -1/2i. नाउ we consider let f be any arbitrary function, f be any arbitrary function so then del f अपॉन del z. तो टोटल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा इसका del f अपॉन del x इंटू del x अपॉन del z और प्लस del f अपॉन del y इंटू del y अपॉन del z. सो वी राइट डाउन है टोटल डिफरेंशिएशन. तो वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. अब यहाँ पे क्या होगा, ये del f अपॉन del x और del x अपॉन del z की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस del f अपॉन del y और del y अपॉन del z की वैल्यू क्या है 1/2 आयोटा. नाउ वी टेक 1/2 एज कॉमन, तो दिस कैन बी रिटन एज del f अपॉन del x और प्लस 1 आयोटा आएगा. तो 1 में आयोटा का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे 1 आयोटा है तो आयोटा का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, आयोटा का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई. सो दिस गिव्स अस आयोटा अपॉन -1. आई स्क्वायर -1 हो जाएगा तो मीन्स माइनस आयोटा. तो दिस वी कैन राइट डाउन एज माइनस आयोटा. तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा. तो दिस वी कैन राइट डाउन एज माइनस आयोटा del f upon del y. Okay, so this is the value of del f upon del z. Now we can write down this as del f upon del z is equal to 1/2 del upon del x minus del upon del y, and we are operating f here. So
removing the arbitrary function from both sides. So this can be written as del upon del z is equal to 1 upon 2 del upon del x minus iota del upon del y. So this is our equation number 5. So this is our equation number 5. This is the equation number 5. Now, similarly, we write down for z bar. So again, we differentiate arbitrary function with respect to z bar. So total differentiation we write down del f upon del x into del x upon del z bar or plus del f upon del y into del y upon del z bar. So here we put the value of del x अपॉन del z बार, क्या वैल्यू है इसकी 1/2 ही है, और प्लस del f अपॉन del y और del y अपॉन del z बार, del y अपॉन del z बार क्या है -1/2i. So this value is -1/2 iota. Now सेम यहाँ से भी 1/2 कॉमन ले लिया, दिस कैन बी रिटन del f अपॉन del x. अब 1/iota भी यहाँ पर है, तो 1/iota को हमने माइनस आयोटा लिखा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये तो हो गया प्लस, और 1/2 हमने कॉमन ले लिया तो ये क्या आ जाएगा हमारा आयोटा डेल अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई. तो नाउ वी राइट डाउन एज डेल एफ अपॉन डेल जेड बार इक्वल टू 1/2 डेल अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल अपॉन डेल वाई, और वी ऑपरेट फंक्शन एफ, arbitrary function. Now we eliminate the function, so this can be written as del upon del z bar is equal to 1/2 del upon del x plus iota del upon del y. So this is the equation number 6. So equation number 6. So now from 5 and 6 directly लिख रहा हूँ इसको. So this gives us del square upon del z into del z bar is equal to 1/4 del square upon del x square और plus del square upon del y square. So we can write down this as del square upon del x square plus del square upon del y square is equal to 4 del square upon del z bar. ओके, तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया स्टेप. अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, फिर उस केस में हमें यहाँ पर फंक्शन को एलिमिनेट नहीं करना है, मतलब यहाँ पर आपको इस इक्वेशन को लेके चलना है और फिर इसको डिफरेंशिएट करना है आपको विद रेस्पेक्ट टू जेड. तो इसको मैं जैसे लिखूँ कि इसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू जेड, तो क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल जेड बार इज इक्वल टू 1/2, और इसको हम एज इट इज रखें प्लस आयोटा डेल अपॉन डेल वाई, और फंक्शन है, फंक्शन पे ऑपरेट करा दें डेरिवेटिव डेल एफ अपॉन डेल जेड, और डेल एफ अपॉन डेल जेड की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन से कहाँ से पुट कर देंगे, जो 5 के ऊपर ये इक्वेशन है इस इक्वेशन से ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर एलिमिनेट कर देंगे फंक्शन को. ओके, तो यू कैन राइट डाउन दैट इज प्लस आयोटा डेल अपॉन डेल वाई, और इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या है 1/2 डेल अपॉन डेल एक्स और माइनस आई डेल अपॉन डेल वाई और इनटू एफ. तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/4 डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और प्लस del square upon del y square operating f. So here we eliminate this f from both sides, arbitrary function को. So then we can write down. Okay, so hope you understand. Now, अब बेसिकली हमें इस प्रॉपर्टी की तरह ही यूज करना है इसको प्रॉब्लम्स में. So we will discuss the problems based on this property, or we can say that. So now, so first we start the question number 1 based on this property. So fz is analytic function. So here we write down the questions.
क्वेश्चन 1, if fz is analytic function, fz is analytic function of z, so prove that del square upon del x square plus del square upon del y square operating fz to the whole square is equal to 4 times f dash z to the whole square, absolute value. Okay, so now when we do the solution, अब इसका solution करना है, तो solution के लिए first we take the LHS side. तो LHS side लेंगे del upon del x square plus del square upon del y square और into f z to the whole square. और दूसरा, तो using the above property, using property, अब प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो इसके प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, तो वी डायरेक्टली पुट एज 4 इंटू डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड और डेल जेड बार और इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ जेड टू द होल स्क्वायर मोड ऑफ एफ जेड। अब एक प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है। प्रॉपर्टी क्या लिखी थी हमने कि मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर है, उसको क्या लिख सकते हैं हम, जेड इंटू जेड बार। तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पर हम यूज करेंगे फंक्शन ऑफ जेड के लिए भी। तो नाउ, तो दिस कैन बी रिटन एज 4 डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड बार। तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पे, जेड, जेड का मतलब हो गया एफ जेड और एफ जेड बार, तो दिस कैन बी रिटन एज एफ जेड बार। नाउ अब डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव फर्स्ट किसके रेस्पेक्ट करना होगा, जेड बार के रेस्पेक्ट। तो फर्स्ट भी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू जेड। अब जेड के रेस्पेक्ट करेंगे तो जेड बार के, सॉरी, जेड बार के रेस्पेक्ट करेंगे तो एफ जेड तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो इसको तो हम एज इट इज रख लेंगे और इसका एफ जेड बार का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा फिर, एफ डैश जेड बार। नाउ अब जेड के रेस्पेक्ट करना है, तो जेड के रेस्पेक्ट करना है तो ये डिफरे कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, डिफरेंशिएट नहीं होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले पार्ट का, उसका हो जाएगा एफ डैश जेड और एफ डैश जेड इंटू एफ डैश जेड बार। अब रिवर्स करके इस प्रॉपर्टी को यूज कर देंगे, कौन सी वाली को, इस प्रॉपर्टी को। अब जो जेड है, जेड के प्लेस पे क्या है हमारा, एफ डैश जेड है और जेड बार के प्लेस पे एफ डैश जेड बार है। तो दिस कैन बी रिटन एज 4 इंटू एफ मॉडुलस ऑफ एफ डैश जेड टू द होल स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इस पे बेस्ड। नाउ वी मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, प्रूव दैट डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इंटू लॉग एफ डैश जेड, लॉग एफ डैश जेड इज इक्वल टू 0। और कंडीशन दे रखी है इसने, प्रोवाइडेड एफ डैश जेड इज नॉट इक्वल टू 0। So f dash z is not equal to 0. Now how to prove this? तो सेम वही प्रोसीजर यूज करना है। दैट मीन्स पहले LHS पार्ट लिया, तो टेकिंग LHS, तो व्हेन वी टेक LHS तो दिस वी कैन राइट डाउन एज, अब इसको लिख दिया डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर और इनटू लॉग मॉडुलस ऑफ एफ डैश जेड। यूज कर दी प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी इसके प्लेस पे क्या लिख देंगे हम, 4 डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड और डेल जेड बार और इनटू लॉग मॉडुलस ऑफ एफ डैश जेड। अब इसको सिंपलीफाई करना है, तो सिंपलीफाई करने के लिए प्रॉपर्टी या लॉगरिथमिक फंक्शन भी है, मॉडुलस भी आ रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें करना होगा लॉग प्रॉपर्टी को यूज करना होगा। जैसे लॉग एम है, ठीक है, अब लॉग एम है, हम इसको ऐसे लिख दें इसको कि 2/2 लॉग एम लिख सकते हैं। भाई 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड किया लॉग एम में, और जो डिनोमिनेटर वाला 2 है उसको एज इट इज लिखा और इनटू लॉग प्रॉपर्टी की हेल्प से इस न्यूमरेटर वाले 2 को उसकी पावर पे ले गए, एम की पावर पे।
So we can write down this as by using the log property n log m। n log m को क्या लिख सकते हैं, log m रेज टू द पावर n। तो वो प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज करी और सेम हम यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर हम क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो पहले तो हम इसे ऐसे लिख दें, फोर डेल अपॉन डेल जेड और डेल जेड बार इंटू 1/2 एज इट इज रखा हमने, और लॉग, और इसको हमने इसके पास ले गए मॉडुलस का होल स्क्वायर कर दिया लॉग प्रॉपर्टी की हेल्प से। आप अंडरस्टैंड करें। अब इस 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो इसको लिख दिया हमने डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड और डेल जेड बार इंटू लॉग एफ डैश जेड टू द होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने वही प्रॉपर्टी लगा दी, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड बार। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 इंटू डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड और डेल जेड बार। तो इसको हम लिख सकते हैं फिर लॉग एफ डैश जेड इंटू एफ डैश जेड बार, ये लिख दिया। अब डेरिवेटिव कर देंगे इसका। तो डेरिवेटिव करने से पहले एक स्टेप और फिर लिखेंगे। फिर अगेन हमने प्रॉपर्टी यूज करी लॉग इन एम इंटू एन। तो लॉग एम इंटू एन को क्या लिख सकते हैं हम, लॉग एम प्लस लॉग एन। तो ये प्रॉपर्टी और यूज कर दें, तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड बार, और दिस कैन बी रिटन एज लॉग एम एफ डैश जेड और प्लस लॉग एन, तो एफ डैश जेड बार। अब डिफ्रेंशिएट करना है इसको पहले जेड बार के रेस्पेक्ट। अब जेड अलग अलग फंक्शन है दोनों, जेड बार के रेस्पेक्ट करोगे तो ये लॉग जेड तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो इसका तो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। और इसका क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन है एफ डैश जेड बार 1/1 लॉग जेड का 1 मतलब लॉग जेड है तो 1/जेड हो गया, और 1/जेड का मतलब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा एफ डबल डैश जेड बार। ये डेरिवेटिव हो गया। अब जेड के रेस्पेक्ट करना है, अब ये दोनों जेड बार की फंक्शन है और जेड के रेस्पेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा प्रूव हो गया। Now we take one more problem. Uh, One more problem, that is if fz equal to u plus iota v, fz is equal to u plus iota v is an analytic function, is an analytic function of z is equal to x plus iota y. Show that del square upon del x square plus del square upon del y square into fz raised to the power p is equal to p square fz raised to the power p minus 2 into f dash z raised to the whole square. Now we do the solution of this. तो टेकिंग LHS वही ऐसे ही सॉल्व करना है। तो टेकिंग LHS, तो LHS लिया तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ एफ जेड रेज टू द पावर p। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करना, तो यहाँ पर तो पहले तो हम प्रॉपर्टी यूज कर दें, तो यूजिंग प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा 4 डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड और डेल जेड बार, और इनटू हम लिख दें मॉड ऑफ एफ जेड रेज टू द पावर p। अब ये रेज टू द पावर p है, अब इस पावर को जैसे हमारा लिखा हुआ है, सॉरी जेड रेज टू द पावर p, जेड रेज टू द पावर p। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम कर दें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, कर सकते हैं। तो वही करना है हमें यहाँ पे भी, 4 डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड और डेल जेड बार। अब इसको कर दिया हमने एफ जेड टू द होल स्क्वायर कर दिया, और होल टू द पावर कर दिया p/2। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी लगा दी, कौन सी, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड बार। तो दिस कैन बी रिटन एज 4 del स्क्वायर अपॉन और डेल जेड बार। और इधर हम इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे हम एफ जेड और एफ जेड बार और होल टू द पावर p/2। नाउ वी कैन राइट डाउन दिस एज 4 del स्क्वायर अपॉन डेल जेड और डेल जेड बार। अब दोनों की पावर हम कर दें, इसकी भी पावर p/2 कर दिया इंटू एफ जेड बार और इसकी भी पावर p/2 लिख दिया। अब डेरिवेटिव करना है किसके रेस्पेक्ट, पहले जेड बार के रेस्पेक्ट। तो 4 del अपॉन del जेड। अब जेड बार के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये तो एज इट कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो इसकी पावर तो ये p/2 ही रहेगी। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, p/2 और ये हो जाएगा एफ जेड बार रेज टू द पावर p/2 -1 हो जाएगा। और एफ जेड बार का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश जेड बार, एफ डैश जेड बार। नाउ अब डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट, जेड के रेस्पेक्ट। तो ये तो पूरा जेड बार का फंक्शन हो गया, तो अब डिफरेंशिएशन इसी का होगा। तो 4, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये होगा p/2 और ये हो जाएगा हमारा एफ जेड रेज टू द पावर हो जाएगा p/2 -1 और एफ जेड का हो जाएगा एफ डैश जेड इंटू p/2 और ये आ जाएगा एफ जेड बार और रेज टू द पावर p/2 -1 और इंटू एफ डैश जेड बार। तो ये एक 2 यहाँ से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। जब 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आएगा हमारा, p और p स्क्वायर हो जाएगा, p स्क्वायर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो हमने इसको लिख दिया एफ जेड को, तो एफ जेड की जो पावर है वो एफ जेड 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 की भी वही पावर है, तो इसको लिख दिया हमने एफ जेड इंटू एफ जेड बार। इसकी पावर हमारी क्या है, p/2 -1 है। और दूसरे में हमने क्या लिख दिया, एफ डैश जेड, दूसरे ब्रैकेट में हमने ले लिया एफ डैश जेड और इंटू एफ डैश जेड बार। तो यहाँ पर भी हमने वही प्रॉपर्टी यूज कर दी, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड बार। तो ये क्या हो गया हमारा, p स्क्वायर और ये बन जाएगा कंप्लीटली मॉड ऑफ एफ जेड। और इसी को क्या लिख देंगे, p-2/2, इसको लिख देंगे p-2/2। तो p-2/2, तो पहले तो इस प्रॉपर्टी को लिख दें हम यहाँ से, ये तो हो गया होल स्क्वायर, होल स्क्वायर और ये जो पावर है हमारी ये हो गई p-2/2 और इनटू ये तो हो गया हमारा फिर एफ डैश जेड टू द होल स्क्वायर। नाउ अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया p स्क्वायर इंटू एफ जेड रेज टू द पावर p-2 इंटू एफ डैश जेड टू द होल स्क्वायर। ये आंसर हो गया, दैट इज द प्रूफ ऑफ दिस problem. I hope you understand the problems based on this property.